Myself, Dr. Khan Romana from Zoology Department. I heartily welcome you in my lecture. Today my topic is from paper 6th General Pathology and the name of the topic is Clinical Pathology. Before discussing the clinical pathology, we see the definition of the pathology. Pathology is the study of disease by scientific method. डिसीज की स्टडी को जो पैथोलॉजी कहा जाता है. पैथोस मीन्स डिसीज एंड लॉगोस मीन्स स्टडी. इट मीन्स दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिसीजेस और टू नो द कॉज ऑफ द डिसीजेस. इट इज कॉल्ड एज अ पैथोलॉजी. And what is the disease? Disease is defined as abnormal variation in structure and function of any part of the body. जिस्म का अगर कोई हिस्सा बराबर से काम नहीं करता है तो ये कंडीशन कहलाएगी डिसीज्ड. और सिंपल डेफिनेशन इज दैट डिसफंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन or any part of the body is called as a diseased condition. Now, clinical pathology is a medical specialty that is concerned with the diagnosis of disease based on the laboratory analysis of bodily fluid such as blood, urine, etc. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो है वह किसी भी डिसीज़ के कॉज को मालूम करने के लिए जिस्म के किसी भी फ्लूइड को जैसे ब्लड, यूरिन या स्टूल वगैरह को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है फॉर नोविंग द कॉज ऑफ द डिसीज़ एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लिनिकल पैथोलॉजी. Another definition of the clinical pathology is that the branch of pathology dealing with the study of disease and disease process by means of chemical, microscopic and serological examination. Means to know the cause of the diseases by examining the blood, urine, stool, saliva, etc. under the microscope, and such examinations are called as a clinical pathology. Clinical pathology is further classified as hematopathology. Hematopathology is the branch of clinical pathology. Hematopathology is the study of diseases of blood cells including white blood cells, red blood cells and platelets, and tissues and organs comprising the हेमोपायोटिक सिस्टम. तो हिमेटोपैथोलॉजी, हेम मीन्स ब्लड, तो जो भी ब्लड सेल्स होते हैं या टिश्यूज ऑर्गेन्स विच आर हेमोपायोटिक इन नेचर. हेमोपायोटिक ऑर्गेन्स मीन्स ऑर्गेन्स विच प्रोड्यूस blood cells like RBCs etc. Such organs are called as a hemopoietic organ and the whole process is called as a hemopiosis. Hemopoietic system refers to tissues and organs that produce hemopoietic cells and include. तो हेमोपायोटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं? बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो जहाँ से आरबीसीज तैयार होते हैं, लिम्फ नोड्स, thymus, spleen and other lymphoid tissues. These all are the organs which are called as a hemopoietic organs which are involved in hemopiosis. It means that यहाँ से जो वो blood cells के जो फॉर्मेशन होती हैं. तो अब इन हेमोपायोटिक ऑर्गन्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है या ब्लड सेल्स में कोई तब्दीलियाँ होती है, कोई चेंज होता है, बॉडी सफरिंग फ्रॉम एनेमिक कंडीशंस और ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया एट्सेट्रा, तो उसको जो ब्लड सेल्स को चेक करने के बाद जो है वो डायग्नोस किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि सेल्स में खराबी है या हेमोपायोटिक ऑर्गन्स आर डिस्टर्ब्ड और दे आर डिसीज्ड. तो दिस होल branch of the pathology or clinical pathology is called as a hematopathology. Next branch of the clinical pathology is called as a molecular pathology. Molecular pathology is the study of disease at the molecular level. This includes molecules found in the tissues, organs and even bodily fluids. तो मॉलिकुलर पैथोलॉजी किसे कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज इन सेल्स एंड टिश्यूज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन.
sugar, etc. These all are the biomolecules. कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं. तो अगर उनमें कमी ज़्यादती होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिसीजेस. और जब उनकी वजह से जो बीमारियाँ होती है उसकी जो स्टडी की जाती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मॉलिकुलर pathology. Molecular pathology is commonly used in diagnosis of cancer and infectious diseases. Cancer is nothing but, it is also called as a neoplasm. कैंसर में जो नए सेल बनते हैं और नए सेल में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें अगर कोई abnormality होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नियोप्लाज्म. तो कैंसर की स्टडी के लिए जो मॉलिक्यूल्स को चेक किया जाता है. और इसके अलावा जो वो इन इन्फेक्शियस डिसीजेस किसे कहते हैं, व्हेन डिसीजेस आर कॉज्ड बाय एनी पैथोजन और जर्म्स. उनकी वजह से अगर कोई डिसीज़ होती है और डिसीजेस विच मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. Diseases may be bacterial, viral, etc., which may be transmitted from one person to the another person. Such type of the diseases are called as infectious diseases. And to know the cause of the infectious diseases, molecular pathology is also useful and helpful. Now, techniques used in molecular pathology is polymerase chain reaction, DNA sequencing, and molecular प्रोफाइलिंग और पैथोजेंस एट्सेट्रा. तो अब इसमें जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या डीएनए सीक्वेंसिंग के ज़रिए जो है वो मॉलिकुलर पैथोलॉजी में डिसीज़ के कॉज को मालूम किया जाता है. तो व्हाट इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक्स यूज्ड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर जो वो डीएनए की कॉपीज़ बनाई जाती है. एंड डिसीजेस लाइक मलेरिया, फाल्सीपोरम मलेरिया वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वो ये जो डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए जो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. क्योंकि फाल्सीपोरम मलेरिया इट इज़ सीन और इट इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम falciparum and plasmodium falciparum they attack to the RBCs को अटैक करती हैं. तो इस तरीके से जो ब्लड को चेक करके जो मालूम किया जाता है कि हाउ द डिसीज़ इज़ डेवलप और किसकी वजह से और कैसे डेवलप हुई है. इसके अलावा जो वो अनदर टेक्निक इज़ यूज्ड इन मॉलिकुलर पैथोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड एज अ डीएनए सीक्वेंसिंग. DNA sequencing is the process of determining the sequence of nucleotide. Nucleotide is nothing but nitrogenous bases. Within a DNA molecule, every organisms having DNA molecules and DNA consists of a unique sequence of a nucleotide. हर ऑर्गेनिज्म में जो वो उसकी अपनी एक आइडेंटिकल नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस सेपरेट आइडेंटिकल होती है. डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस कैन हेल्प द साइंटिस्ट कंपेयर डीएनए बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. और इस डीएनए सीक्वेंसिंग को कंपेयर करके नाइट्रोजिनस बेस को या न्यूक्लियोटाइड को चेक करके मालूम किया जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिसीज़ या किस वजह से या कहाँ पर डिसीज़ डेवलप हो रही है. एंड ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर किसी की जो एक दूसरे से जो वो अलहदा होती है, सेपरेट होती है. इसके अलावा जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द क्लिनिकल पैथोलॉजी इज़ द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी. ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी इज़ नथिंग बट it is one of 9 dental specialties recognized by the American Dental Association and is sometimes considered a specialty of both डेंटिस्ट्री एंड पैथोलॉजी. यानी ये ब्रांच जो है वो पैथोलॉजी में भी आती है और डेंटिस्ट्री में भी आती है. तो ओरल और मैक्सिलो फेशियल पैथोलॉजी क्या होती है, इज रिफर्स टू द डिसीज ऑफ द माउथ और ओरल कैविटी और स्टोमा. माउथ की या ओरल कैविटी की जो भी बीमारियां होती है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज और इंक्लूडिंग इन द ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल पैथोलॉजी. Maxilla means jaws or gnatha and related structures such as salivary gland,
टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट्स, फेशियल मसल्स एंड पेरी ओरल स्किन। ये सारी चीज़ें जब अफेक्टेड होती है, डिसीज्ड होती है, तो इनकी जो स्टडी की जाती है, ऑल आर इंक्लूडिंग इन दी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। पेरी ओरल स्किन किसे कहते हैं? द स्किन अराउंड दी माउथ, माउथ के इतराफ में जो स्किन होती है उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको भी जो है ओरल और मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है। द माउथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन with many different functions. It is also prone to a variety of medical and dental disorder. As you know that very important part होता है माउथ हमारे जिस्म का, और उसमें भी जो वो देयर इज चांसेस ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी और डिसीज कंडीशंस आर सीन, और उसके कॉज को मालूम करने के लिए जो पैथोलॉजी होती है वो इट इज़ कॉल्ड एज अ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। द स्पेशलिटी ओरल and maxillofacial pathology is concerned with the diagnosis and the study of the causes and effects of disease affecting the oral and maxillofacial region. It is sometimes considered to be a specialty of dentistry and pathology. Sometimes the term head and neck pathology is used instead, which may indicate that pathologist deals with ornitholaryngeo disorder. That means ear, nose and throats are also affected, and all such important organs जैसे ईयर, नोज और थ्रोट जो होते हैं, ऑल आर इंक्लूडिंग, उनमें भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो दिस ऑल आर इंक्लूडिंग इन द ओरल और मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। उसमें उसकी स्टडी की जाती है, उसके कॉज को मालूम किया जाता है। थैंक यू। तो दिस इज़ अबाउट द क्लिनिकल पैथोलॉजी।